Assalamu alaikum. Our today's topic name is geological history and ocean currents. What is geology? How Earth is formed, and how they affect the climate of the Earth. And then we will also discuss about the ocean currents. What are the ocean currents? How they are moving different water bodies, and what are the effects of uh, the change in the ocean water speed and their movement. So first of all, we will tell you about what is geology. Geology is the scientific study of earth, its structure, material, process, and uh, material processes and history of its formation. So, what actually the geologists they actually study about the Earth? What are the different forms of the how it is made? What are different structures? What are the different rocks that are present in the Earth? And also the how these rocks formed, and during the different history of the humankind, this Earth is actually transformed. So, in this lecture, we will tell you about the what are the rocks, what are the minerals, and how we can understand the our future, and how we can predict the future based on the finding that are present in the past. So there are different branches of geology. First branch is mineralogy or petrology, the study of minerals and rocks and how they forms, what are their composition, what are their how they function. So this is known as mineralogy. And another branch of geology is paleontology. So in this paleontology, we will study about how the study about the fossils, how they forms, how they create different life forms, how the life begins on the earth. So, what are the first organisms that are present on the earth? So we study about the actually the origin of life in the paleontology. Then we study what is structural geology. So, in this structural geology, we will study about the physical structure in the earth crust, and such as folds and faults, and the forces that actually helping them to create these folds and faults. And then we will tell the sedimentology is the study of how these rocks are formed. So the study of sedimentary rocks and process often used to reconstruct ancient environment. Then we will study about volcanoes, lavas, magnet, and these study of these volcanoes are called uh, lava, magma, and other things. So and then other two branches, last two branches of geology is seismology and hydrogeology, the study of earthquakes and the movement of the seismic waves through earth crust is known as seismology, and the study of the groundwater and the distribution and their movement and their effect on the water in the soil and rocks, that is known as hydrogeology. So what is ocean current? Uh, जी बच्चे बताएं what is ocean current? Can anyone tell me? What is geology and what is ocean current? The study सर नहीं पता सर नहीं पता called geology, and ocean current means जो समंदर में जो लहरें होती है, लहरें बनती है, उसको ओशियन करंट बोलते हैं। Okay. उसका क्या क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है इन ओशन करंट्स का, और ये कैसे पैदा होती है?
सर उसका आइडिया नहीं सर। अच्छा, ये जो मेरीन का इकोसिस्टम क्या होगा? व्हाट इज मेरीन इकोसिस्टम? सर उसमें वाटर की जो एसिडिटी वगैरह, मेरीन लाइफ, उसके बायोटिक फैक्टर जैसे कि मछलियाँ वगैरह मछलियाँ जो सर। जिंदा जानदार हैं, और उसके अलावा जो एबायोटिक फैक्टर मछलियाँ होते हैं, सर। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर, उसको मेरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। Very good, excellent. So it means all these different biotic and abiotic factors that are living in the marine, how they ओशियन। interact with यस। each other, और यस। और उसको हम कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम ना। उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम। और उसकी वजह से यस। जो ज़ाहिर है दैट आल्सो हेल्प इन चेंजिंग द क्लाइमेट, और उसके बाद कोस्टल एनवायरनमेंट भी चेंज होती है। तो दे आर लाइक रिवर्स विद इन द सी। अच्छा, ये जो ओशन करंट्स होते हैं ना, जिस तरह रिवर मूव करता है ना, ऐसे जब पानी, समुद्र का पानी मूव करता है, उसे हम ओशन करंट कहते हैं। जिस तरह हम हमारा हिमालय से पानी आता है रिवर, और वो केपीके से आता हुआ फिर पंजाब में आता है, पंजाब से आता हुआ सिंध में जाता है, और इस तरह ये मूवमेंट हो रही है वाटर की। और इसी तरह ही अगर ओशन का पानी मूव करे, उसको हम कहते हैं ओशन करंट। ठीक है। और 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 इसकी वजह से डिफरेंट जो है ना, आपको पता है ना कि जो चीजें हैं वो हायर, अगर एक जगह अभी वो पानी ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो पानी कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम हायर टू, फ्रॉम जहां पर से पानी ज्यादा है और जहां पर कम है उसकी तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर एक जगह हीट ज्यादा है और दूसरी जगह हीट कम है, तो क्या करेगी? हीट फ्रॉम, क्या करेगी? हीट फ्रॉम जो हायर लेवल से कोल्ड की तरफ जाएगी, हॉट हॉट से, बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट ताकि बॉडी टू कोल्ड बैलेंस बॉडी। क्रिएट हो जाए, ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए। और ये जो ओशन करंट्स है ना, ये भी ऐसे ही करते हैं कि जो इक्वेटर से टूवर्ड्स पोल की तरफ जाती हैं, क्योंकि इक्वेटर में पानी हॉट होता है। और पानी जो इक्वेटर में हॉट क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सनलाइट पड़ती है। सनलाइट की वजह से पानी वहां बहुत ज्यादा हॉट होता है, और पानी वहां से मूव होता है पोल्स की तरफ, कूलर रीजन की तरफ, ताकि वहां पर भी जो बैलेंस क्रिएट किया जा सके पानी के अंदर। जिस तरह गल्फ स्ट्रीम है जो कि मैक्सिको के अंदर है, वो पानी वाटर उसके अंदर, वाटर जो वार्म होता है वो फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ चला जाता है। ठीक है। इस तरह यूएसए की कोस्ट यूरोपियन यूरोपियन की तरफ चला जाता है। इस तरह डिफरेंट जो एरियाज हैं, तो ओशन करंट की वजह से और ताकि ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो जाए। और ओशन करंट की वजह से मैरीन लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, वो भी माइग्रेशन करती है फूड की तरफ और ब्रीडिंग के लिए। सो अब जो ओशन करंट के लिए डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो विंड है। विंड क्या करती है कि वो वाटर को मूव करवाती है। Wind blows across the ocean surface, pushing water, generating surface current. For example, trade wind drive the movement of equatorial currents. और इसके अलावा दूसरा जो इफेक्ट है वो अर्थ की रोटेशन आल्सो अफेक्ट ऑन द ओशन करंट। ठीक है। अर्थ रोटेशन, आपको पता है ना कि अर्थ कैसे मूव करती है? गोल गोल। गोल गोल। अर्थ एक तो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, एक वो अपनी रोटेशन के इर्द गिर्द भी घूमती है। पता ना आपको? अर्थ दो तरीके से घूमती है, एक अपने रोटेशन के इर्द गिर्द, एक सूरज के इर्द गिर्द। ठीक है। और उसकी वजह से भी ओशन करंट पैदा होते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर्स क्या होते हैं? साउथर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम किस में आते हैं? There are two messages which connect my सर ये दोनों सो रहे हैं सर, एक ये अच्छा, व्हाट इज नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर? ये हम इंटरनेट पे सर लिखते हैं। सर हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि आधा हिस्सा, एक सर्कल का आधा इसका हिस्सा दूसरा आधा हिस्सा ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
यस, हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि जो नॉर्थ पोल होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया बोलते हैं, जो साइड होता है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड को ये देखिए ना, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्थ की। पाकिस्तान किस में आता है? सर पाकिस्तान नॉर्दर्न में। पाकिस्तान नॉर्थर्न में आता है, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया आता है साउदर्न में। ठीक है। यस, अभी ऑस्ट्रेलिया में ना गर्मी है। यस किस सर, चीज की? यस, ठीक है। और जो गर्मी है नॉर्दर्न बिल्कुल। एरिया है वहां पर सर्दी है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है। ठीक है। समझ आ गई? ये किस यस वजह यस से सर, सर। होता है? आ गई सर। आ गई है, आ गई है, आ गई है, बस ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको भेज दूंगा। अच्छा, फिर टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंसेस आल्सो हेल्प इन ओशन करंट। ठीक है। अगर कहीं जगह ज्यादा ज़ाहिर है जो साल्ट ज्यादा होगा तो उसकी तरफ जो पानी है ना वो मूव करेगा, और पानी कोल्ड है या डिफरेंसेस है तो उसकी और इसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल जो मून और सन की वजह से, दे आल्सो हेल्प इन ओशन करंट। रियान संगे रियान। क्या कह रहे हो? क्या उसके बाद है जियोलॉजिकल एंड ओशन स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट अबाउट द अर्थ पास्ट। अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ कैसा था, पास्ट क्या था, ओशन करंट्स क्या है, ये सारी कहानी हम, और इसको हम स्टडी करके मैरीन की बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को भी के इफेक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये है कि जमीन बनी कैसे। क्वेश्चन ये है कि कब दुनिया में अर्थ कब बनी, बताएं बच्चों, कोई है आइडिया? 400 बिलियन ईयर सर एगो अर्थ, सर। सर 4.5 40। बिलियन ईयर अगो। ओ चार। 4.5 बिलियन ईयर अगो उसको कहते हैं। 4.6 से 4.0 बिलियन ईयर अगो को हम कहते हैं हैडन। यस, अच्छा, फॉर्मेशन अब ऑफ अर्थ। हैडन ये कोई ग्रीक गॉड था, उसके नाम पे इन्होंने रखा हुआ है। तो उसके मुताबिक ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ उस दौर में हुई। और फिर आर्कियन है उस दौरान में, ये अलियस जो लाइफ की फॉर्म्स है ना, जो जो बैक्टीरिया सुना ओरिजिन हुआ है, तो इसका जो ओरिजिन है वो आर्कियन दौर में हुआ है। ठीक है। यस, यस। अर्कियन क्या है सर, अर्कियन? आर्कियन का मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये है कि इस दौरान हेडन तो वो ग्रीक गॉड था। सही है सर, आर्कियन थैंक का यू। और पेट्रो इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये अर्थ फॉर्म आई, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेशन होगी, और उसके बाद फेनेरोसिक में जो आजकल ये इसमें हुआ है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी मतलब सचिन, वैरायटीज। वैराइटीज, वैराइटीज वैरायटीज सर। ऑफ लाइफ। ठीक है। जो आजकल हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। के बाद ओशन करंट की वजह से क्या होता है? ओशन करंट आर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज विंड, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। दे आर categorized into surface current and deep water current। दो तरह का करंट होता है।